चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है। साथियों, पिछले एक साल से कांग्रेस पार्टी कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करती आ रही है। दिसंबर 2021 में जयपुर में एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया। 5 अगस्त 2022 को सारे सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता महंगाई के खिलाफ विजय चौक पर रैली की और हमें गिरफ्तार किया गया। करीब 70 सांसद गिरफ्तार हुए और किंग्सवे कैंप को हमें जाना पड़ा। कल यहां महंगाई पर हल्ला बोल रैली होने वाली है रामलीला मैदान में। हम 3 साल बाद रामलीला मैदान वापस लौट आ रहे हैं और इस रैली के बारे में आपको और जानकारी देने के लिए हमारे 3 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। केसी वेणुगोपाल जी, जो संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी, जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, अजय माकन जी, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, और दिल्ली पीसीसी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। मैं पहले वेणुगोपाल सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस रैली के बारे में कुछ आप बताएं। उसके बाद मैं माकन जी से गुजारिश करूंगा, उसके बाद शक्ति सिंह जी बोलेंगे और अंत में अनिल चौधरी कुछ कहकर आपके सवाल का जवाब हम देंगे। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. All set arranged for a massive rally against the price rise is going to happen tomorrow. Lakhs of people will attend. In this rally, workers from the nearby states of Delhi and leaders from the all over India will participate in this rally. As rightly Jairam ji pointed out, this agitation have been started 2021 onwards. We can proudly say that we are the party is fighting against this most painful price rise issue all over the country. From 2021 onwards, consistently, continuously, we are doing this agitation. You know that our agitation is happening everywhere, whether it is south, whether it is north, whether it is west, whether it is northeastern states, district level, block level, even in petrol pump level. We have done a beautiful signature demonstration campaign all over India by taking crores of signatures from the common man, those who are affected by this price rise, and given to the Rashtrapati. August 5th, you know that. We have demonstrated it as a black day, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, our entire MPs, our entire CLP leaders in the states, and PCC President
are court arrested. But we pressed them in Parliament for a discussion and debate. Initially, for 2 weeks, the government is not agreed for a discussion. But finally, discussion happened, but nothing on the result side. This government is totally insensitive. You can compare the price rise. You people have to compare it. What was the prices of LPG gas in 2014? What is the prices of 2022? From 40% to 175% increase in majority of the item. 40% to 175% increase in essential commodities, petrol, diesel, LPG gas. If you ask a question to the government, there is no answer. Finance Minister didn't say anything, and meanwhile, further burdening the crisis, GST rates of some item also have been increased. We demanded a rollback on GST price, nothing has happened. Look, actually, you can feel the pain of the common man due to the insensitivity of this union government. The bad policy on economics of this union government. Therefore, we are, as a principled, responsible opposition party of the country, last 1 year, we are in the street, we are in police station against this price rise. Tomorrow is one of the most important day for this issue. The entire country is going to show the reflection of the pain of the common people due to the bad economic policies of this Modi government. They are not bothered about all these things. They are only bothered about to buy the MLAs, take the government. This is the only one point agenda for this government. Nothing else. For this issue, we are going to take forward. Tomorrow, Honorable former Congress President Rahul Gandhi is going to have a strong address to the nation through this meeting. After that, everybody know that 7th onwards, we are going for a national-wide agitation. That also, this issue is the common people paying. The agony is the major one for that yatra also, one reason for that yatra also. I am appealing all of us, all of you, all of the countrymen, those who are suffering this bad policies of union government due to, they have to join us tomorrow. This is going to be one of the biggest rally against the price rise in this country. We will not stop tomorrow. We will continue our agitations. Definitely, this is what I want to say initially. हेलो, वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर
रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को फायदा हुआ। अब उस टैक्स की अगर भरपाई करनी है तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी जीएसटी, जो कि साधारण जनता का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएंगे तो भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज, हमारे समय के ऊपर कुल कलेक्शन एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1,57,000 करोड़ होती थी। इस वर्ष 6 लाख करोड़ से ऊपर 4 गुना से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर कलेक्शन बढ़ा दिया गया। हमारे समय के ऊपर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। वो सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम करके 10,000 करोड़ से भी कम कर दी गई। 14 गुना सब्सिडी कम कर दी गई। तो जब 14 गुना सब्सिडी कम कर देंगे, 4 गुना टैक्स एक्साइज केंद्र सरकार बढ़ा देगी, तो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल और रसोई घरों की गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो अब सबको नजर आ रहा। अगर जीएसटी खाद्य पदार्थ पे लगा करके भरपाई पूरी करेंगे, जो कॉर्पोरेट मित्र पूंजीपति घरानों के ऊपर जो टैक्स 30% लगाया जाता था घट करके 15% आधा कर दिया, 15 से 22% कर दिया, तो जो औद्योगिक घरानों के ऊपर मित्र पूंजीपतियों पे कॉर्पोरेट टैक्स जब आधा कर दिया, तो उसकी भरपाई जीएसटी खाद्य पदार्थों पे बढ़ा करके करेंगे तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वही नजर आ रहा। आज आप खाद्य तेल को देख लें, अगर आज आप अनाज देख लें, अगर आज धान देख लें, सब्जियां देख लें, फल फ्रूट देख लें, पेट्रोल डीजल केरोसिन, आप रसोई घर की गैस देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसमान को छूती हुई महंगाई नजर नहीं आ रही। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर ये काम हो रहा है। ये हम आज आपको कहना चाहते हैं और एक गंभीर और सशक्त विपक्ष की आवाज बन करके कहना चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि कृपया करके अपने चैनल्स में, अपने अखबार के अंदर इन सब चीजों को बताएं। जनता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है और अमीर और अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए। दुनिया के दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे इसका कंपटीशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे गरीब और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई की बोझ के तले दबे जा रहे हैं। और एक सशक्त विपक्ष की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बन करके कल रामलीला मैदान से पूरे देश को आह्वान करेंगे। हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का आपका काम है, उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन परम श्रद्धेय वेणुगोपाल जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी,
हमारे सीनियर नेता जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, दिल्ली के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर साथी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जिम्मेदार विरोधी दल के नाते देश में आज आम नागरिक महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, उसके खिलाफ हल्ला बोल, ये सरकार के दोस्तों के लिए सरकार काम करती है, वो आम नागरिक के लिए काम करे, इसके लिए हमने दिल्ली में कल सुबह 11 बजे रैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के उन सभी लोगों का जिन्होंने, हम जब नुक्कड़ में गए, ग्रुप मीटिंग्स में गए, लोगों के बीच में महंगाई की चर्चा के लिए गए, प्यार और सहयोग दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट में कुछ बात करके मेरी बात खत्म करूंगा। हम कोई बड़का झूठा पार्टी बीजेपी नहीं है कि झूठ बात करेंगे। हम ना फेंकूबाजी करेंगे ना हवाबाजी करेंगे। मैं आपको, जैसे बीजेपी कहती है कि कुछ बोल देती है और कोई सोर्स नहीं बताती है आंकड़ों का, मैं आपको उन सोर्स के साथ कहना चाहता हूं। ये कहते हैं ना, बीजेपी वाले कहते हैं सब चंगासी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं महंगाई नहीं है। मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है, वो खुद भारत सरकार की साइट पे अप्रैल 2021 में महंगाई का दर वो था 4.23%। 4.23% महंगाई थी अप्रैल 2021 में। एक साल के बाद 2022 में अप्रैल में 7.79, ऑलमोस्ट डबल महंगाई हुई है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी, ये महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये पहले रसोई गैस के बारे में बहुत सड़कों पे आ गए थे जब गैस के बोतल का दाम था 400 से 415 रुपया। मोदी जी की एक करीबी मंत्री, वो तो गैस के सिलेंडर पर बैठ जाती थी और हल्ला बोल करती थी। मैं कहना चाहता हूं कि ये गैस के दाम, एलपीजी गैस के दाम कौन तय करता है? इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरामको गैस के, एलपीजी के इंटरनेशनल मार्केट के दाम तय करता है सऊदी अरामको। 2013-14 में जब हमारी सरकार थी, एक रसोई गैस का इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरामको का तय किया हुआ दाम था, वो था $885.2 US पर मेट्रिक टन। $885.2 पर मेट्रिक टन वो दाम था 2013-14 में। उस वक्त गैस सिलेंडर की प्राइस थी 400 रुपया से 415। आज भाजपा के शासन में सऊदी अरामको के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कम हो गए और घट के $769 US पर मेट्रिक टन हो गया। तो रसोई गैस सस्ता होना चाहिए ना, उसकी जगह पे 400 रुपये का सिलेंडर 1000 से 1100 के पार हुआ। सरकार जवाब नहीं देती कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हो तो हालत यह है। भारत सरकार का पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट है, वहां पे डेटा दिया है, उसी को लेके मैं कहता हूं यूपीए के आखिरी 3 साल, हमारी सरकार के आखिरी 3 साल, उसमें कच्चा क्रूड था, उसकी प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज 3 साल की 108.46
108.46 यूएस डॉलर पर बैरल प्राइस थी और भाजपा के 3 साल में वो घट के 60.6 यूएस डॉलर एवरेज लास्ट 3 साल की कच्चे गुड़ की प्राइस है। तो पेट्रोल और डीजल हमारे मुकाबले सस्ता होना चाहिए ना, 100 के पार कर दिया। देश की जनता इसका जवाब मांगती है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऑयल बॉन्ड ले लिए थे, उसको भरने के लिए हमारा पैसा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट में लिखा है कि इन्होंने 27 लाख करोड़ वसूले टैक्स के, 27 लाख करोड़, और ऑयल बॉन्ड में कितने भरे हैं? सिर्फ 98,000, सिर्फ 98,000 करोड़ भरे हैं और 27 लाख करोड़ इन्होंने वसूल किए हैं। माने 2% भी ऑयल बॉन्ड में नहीं गया है। तो ये हकीकत आपके सामने मैंने रखी है। और चीजों पे आज आम नागरिक जीना हराम है उसका। अभी हमारे सौराष्ट्र में एक बंदे ने सुसाइड किया और लिखा कि महंगाई से मैं परिवार नहीं चला सकता था इसलिए मर रहा हूं। तो इस जनता के आक्रोश की आवाज देने के लिए हमारी रैली है। आप सबके जरिए अनुरोध है देशवासियों को कि इस हल्ला बोल रैली में आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिले। मैं अब अनिल चौधरी जी से विनती करूंगा वो अपनी बात रखें, फिर आपके कोई सवाल होंगे तो स्वागत रहेगा। धन्यवाद आदरणीय शक्ति जी। इस प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित हैं और साथ ही साथ आदरणीय चेयरमैन साहब जयराम रमेश जी, आदरणीय शक्ति भाई और परमशादे कांग्रेस के हमारे नेता अजय माकन जी भी उपस्थित हैं। बड़े विस्तार से मैं समझता हूं कल की रैली के बारे में सभी मेरे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत तरीके से आपके सामने व्याख्या की है क्यों ये रैली हो रही है, उद्देश्य क्या है, कब से कांग्रेस का संघर्ष चल रहा है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है इस तरह की रैली हम पिछले दिनों यहाँ करना चाहते थे। जो रैली हमने महंगाई के खिलाफ जयपुर में, सवाल ये उठता है, कई बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि, और कई बार मेरे पत्रकार बंधु भी ये सवाल कह रहे कांग्रेस क्या कर रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कांग्रेस का जो संघर्ष आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा है, खासतौर से 2021 से निरंतर कांग्रेस पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है। जवाब महंगाई पर है, जिसका जिक्र आंकड़ों में आदरणीय अजय माकन जी ने और शक्ति सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने रखा है। लेकिन प्रश्न ये है 2014 में जो सरकार 70 साल करके मनमोहन जी की सरकार से सवाल पूछा करती थी, कांग्रेस से सवाल पूछा करती थी, और जो जिक्र मेरे साथियों ने कहा महंगाई पे गैस सिलेंडर पे बैठ करके प्रचार प्रसार किया करते थे, जो दर्जन भर इनकी महिला नेताएं आज चुप हैं और मौन है गैस सिलेंडर। तो 70 साल में 2014 तक यदि महंगाई की मैं बात करूं तो उस समय गैस के रेट हुआ करते थे 410 या 15। ऐसा क्या हो गया कि 8 साल में गैस के रेट लगभग 1100 रुपए से ज्यादा हो गए। जो गरीब जो 2 वक्त का अन्न खाता है, जिस आटे की कीमत 70 साल में इस मुल्क में 20 रुपए हुआ करती थी, जो देश कृषि प्रधान कहलाया जाता है, उस देश के अंदर आज 8 साल में आटे का रेट 40 रुपए हो गया। जो दूध की कीमत, आज दूध की कीमत के बारे में कई समाचार पत्रों में छपा है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को स्वच्छ या पौष्टिक दूध खरीदने में असमर्थ है। आज की खबर है ये। इस सरकार पे ये बड़ा एक आरोप भी है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, स्वच्छ या एक क्वालिटी वाला दूध। ये एक बड़ी खबर है। इस देश के अंदर, इस कृषि प्रधान देश में 70 साल में जिस दूध की कीमत 2014 में 30 या 32 रुपए थी, आज वो 60 से 62 रुपए हो गई है। उसी तरह ईंधन का जिक्र हम करना चाहते हैं। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल उस समय 65 और 55 रुपए हुआ करता था डीजल, आज वो 100 के पार हो गया। इसी देश में फिर कृषि से जुड़ा हुआ एक और ऑयल, सरसों का तेल मैं कहना चाहता हूं, 70 साल में जिसकी कीमत 2014 तक मात्र 80 रुपए हुआ करती थी, ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में कि वो सरसों का तेल 200 के पार हो गया। तो साथियों, सवाल ये है, जिस महंगाई से जनता त्रस्त है उसके खिलाफ जंग कांग्रेस पार्टी लड़ रही। लगातार संघर्ष रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे सांसद राहुल जी के नेतृत्व में इस सरकार से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं आता। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के नेतृत्व में गांव-गांव जाती है, गरीबों के दर्द को समझती है। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल को लेकर के आंदोलन किया गया। एक सिंबॉलिक इन सरकार को जगाने के लिए
बैलगाड़ी का लेकर के सहारा जगाने की कोशिश की गई। हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाए, जन जागरण अभियान के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर इस महंगाई पे चुप्पी तोड़ने के लिए, राहत के लिए हमने इस देश के प्रधानमंत्री से आह्वान किया, लेकिन मोदी जी है सुनते नहीं। मेरे साथी ने जिक्र किया, आदरणीय अजय माकन जी ने, चंद अपने पूंजीपति जो मित्र हैं जिनको 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, वो विश्व के अंदर लगभग पहले 3 टॉप व्यवसायियों में जाने लगे हैं। एक तरफ गरीब और गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर हैं उनके मित्र, वो जो पूंजीपति है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, वो देश की पंक्ति में एशिया नहीं विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो अंतर साफ है साथियों, 70 साल बनाम 8 साल। ये प्रश्न है मेरे कि ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में जो अंतर दिख रहा है। खाद्य वस्तुओं का अंतर दिख रहा है, ईंधन में अंतर दिख रहा है, और अंत में ये कहते हुए मोदी जी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर यही उनके 2 भाई हैं जिन पे वो अपने प्रेम से लगाए बैठे, जिनको मौका दे रहे हैं बढ़ने। बेरोजगारी को भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई को भी बढ़ा रहे हैं, और आम देश की जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। राहुल जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की देश के कोने कोने से आने वाले कार्यकर्ता और आम जनमानस के स्वागत के लिए उपस्थित है। हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो आना चाहता है सीधा मैदान में भी आएगा। रेलवे स्टेशन पे भी हमने अपने सहयोगियों को बैठाया है। हमारे दिल्ली से भी बहुत कॉल आ रही हैं, लाखों लोग आएंगे। इस सरकार को अब जवाब देना होगा, बिगुल बजा है। तो अंत में यही कहते हुए कल 11 बजे मैं पुनः आपको दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निमंत्रण देता हूं। इस सच को दिखाएं। सच यही कि आज गरीब आदमी परेशान है। आदरणीय केसी साहब का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने निर्णय लिया और पार्टी ने दिल्ली देश की राजधानी में इस महंगाई के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बिगुल बजाया है। और कल का जो हमारा संदेश है, ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली होगी इस सरकार को जगाने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया। कुछ सवाल? हाँ जी, शुक्रिया। से कितने लोगों के आप एक्सपेक्ट करें, कितने लोग यहाँ पर आएंगे टोटल? और इसके साथ साथ आप लोग क्या, जो स्टेट में आप लोगों ने रैलीज ऑर्गेनाइज की थी, उसका क्या रिस्पांस आया है? आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। लोगों में जोश है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, जनता भी इसमें साथ दे रही है, क्योंकि महंगाई से सब परेशान हैं। आपका दूसरा सवाल था कि और राज्यों में, तो सभी राज्यों में हमने ये महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ पे चर्चा, महंगाई पे चर्चा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट पे, और इनके खिलाफ के प्रोग्राम दिए हुए हैं। कल का प्रोग्राम है वो यहां रामलीला मैदान में बड़ी रैली के जरिए होगा। और सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू। व्हाट आर यू बोलिए बोलिए सर। आप लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पब्लिक से भी रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि पिछले जितने भी जो है चुनाव रहे, उन चुनावों में नतीजा महंगाई लगातार आप कह रहे हैं 8 साल से बढ़ रही है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जनता का साथ फिर भी सरकार को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? और अब जब 2024 से पहले आप लोग भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से करने जा रहे हैं, आज आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या हम माने कि कांग्रेस ने अपने 2 हथियार चुन लिए हैं विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और भारत जोड़ो? देखिए, कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की आवाज है। हम लोग लगातार ये बोल रहे हैं, और महंगाई और बेरोजगारी जनता के सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर उनसे भी बड़ा कोई मुद्दा है, वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था से बड़ा तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। और अगर उससे बड़ा कोई मुद्दा है तो भारत जोड़ने का, समाज के सब वर्गों को इकट्ठा करने का है। तो हम लोग यही सब चीजों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, 7 तारीख से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग जनता के बीच में जाकर के, इनसे बड़े कोई मुद्दे नहीं है, इनसे महत्वपूर्ण कोई मुद्दे नहीं है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इन बात को समझेगी। और आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, मीडिया बंधुओं से भी, कि आप लोग इन मुद्दों को, जो वास्तविक मुद्दे हैं जनता के,
हितों के जो वास्तविक मुद्दे हैं इनके बारे में जनता के बीच में चर्चा करें, ना कि जो कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता के जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी चर्चा करें। तो आप लोग भी मीडिया के साथी कम से कम नैरेटिव आप लोग जो है जनता के वास्तविक मुद्दों की, जनता के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था है, सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वो सब एक साथ में रहे, ध्रुवीकरण ना हो चाहे धर्म और जात के नाम पे। यही तो भारत को जोड़ने की और भारत को आगे बढ़ाने की इनसे बड़ी कौन बात कर सकता है। और यही हम लोग बातों को लेकर के, और ये जमीनी बातें हैं, असली बातें हैं, और इनको लेकर के कांग्रेस लड़ती रहेगी, कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। सर इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं सर, छोटी सी, जो आपने कहा रेस्पॉन्स की, हमने दिल्ली के, क्योंकि हालांकि ये रैली जो पूरे देश भर से है, लेकिन दिल्ली में हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था। जो लोग साथी, स्वाभाविक है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, हर व्यक्ति शायद रामलीला मैदान तक ना पाए, जैसे शक्ति भाई ने कहा, 2 हाथ को काम चाहिए, दिन में कुआं में पानी खोदते हैं और रात को पीते हैं, ये स्थिति है। तो हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था। आपको जान के हैरानी होगी, ये प्रश्न का जवाब है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, आवाज देना चाहते हैं। हमने मिस कॉल नंबर जारी किया था सर, और वो नंबर था 9625777907। पिछले 48 घंटे में 40,000 से ज्यादा मिस कॉल हमें प्राप्त हुई है। ये दिखाता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। हमने जगह जगह चौपालें लगाई थी मार्केट्स के अंदर, छोटी छोटी, लोग रुक रुक के इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। और सर आप कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के लिए उठाना है, लेकिन ये चुनावी मैदान की जब हम बात करते हैं चुनाव के दौरान, तो ये वोटों में तो तब्दील नहीं हो पा रहे। तो क्या कोई और भी रणनीति इसके अलावा कि आप उसको कन्वर्ट कर पाए? देखिए, ये हम जो जनता से जुड़ी हुई आवाज उठा रहे हैं, कोई चुनाव की वजह से नहीं उठा रहे। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, सशक्त विपक्ष की भूमिका है। अगर आप हर चीज को भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव से जोड़ करके देखेंगे तो सही तरीके से देश हित की बात नहीं है। आप क्या, हम सबके सब लोग, हम सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए नहीं होते। हम जनता की आवाज उठाएंगे, जनता को यह तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है, और उसमें आप सब लोगों की भी भूमिका रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है, हम जनता के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी है, जो जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं। सर लेफ्ट साइड में मैं इधर एक सवाल है, 1 मिनट यार, 1 मिनट खत्म होने तो सबको मौका मिलेगा। Sir, this entire halla ball against Mehengai, will it percolate down to state level? Could we be seeing the Congress party taking it up at the state level? Because that is also where you are opposed to several BJP ruled states especially. No. This is a national-wide agitation. Certainly, I told the last 1 year continuously. If you want, I can read out if you want, we can read out. But last 1 year, you can see July 7th to 17th, 22nd. Block, district and state level protest program were organized from 7 July to 17 July 2021. During this campaign, a women activist of Mahila Congress, Youth Congress and other frontal organized block and district level protest. Congress party leaders and workers participated in a cycle yatra in district level on July 10 all over India. Then signature campaign, I mentioned all over the petrol pump of India. We have organized a signature campaign and we have given a 2 crore signatures letter to President of